कूचबिहार में चुनाव के दौरान हो रही हिंसा और बम को लेकर बोले भाजपा नेता दिलीप घोष। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में आज सुबह से ही मतदान के दौरान हिंसा और बम बरामद होने की घटना घटित हो रही है। इसको लेकर भाजपा नेता दिलीप मुखर्जी ने कहा कि कूचबिहार में हमेशा से सेंसिटिव इलाका रहा है, जहां पंचायत और लोकसभा चुनाव में हिंसा होती रही है। हिंसा के माध्यम से लोगों में भय फैलाकर उन्हें डराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वहां के लोग डरने वाले नहीं है और वे लोग वोट देंगे और निश्चित दान जीतेंगे। दिलीप घोष, भाजपा नेता। ঠিক আছে, আর গতবারে হাওড়াতে হয়েছে এটা এবং তদন্ত হয়েছে, ধরা পড়েছে বদমাইশরা। আর এইভাবে কিছু লোককে লাগিয়ে দিয়ে ধার্মিক উত্তেজনা, আমাদের হিন্দুদের উৎসবেতে উৎপাত করা আর অশান্তি তৈরি করে রাজনীতি লাভ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বারবার। আর যদি তদন্ত হয় দোষীরা সাজা পায়, এটা বন্ধ হবে। আমি আশা করব মুর্শিদাবাদে যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে তারাও সাজা পাবে। জিটে নিয়ে যে সিবিআই তদন্ত ডিভিশন বেঞ্চ আপিল করেছিল, ডিভিশন বেঞ্চ কিন্তু সিবিআই তদন্তের পক্ষে রায় দিয়েছে। ভালো হতো, স্বাগত যোগ্য। যেমন দাড়িভিটের ঘটনা, এরকম কিছু ঘটনা, বড় বড় বাম ব্লাস্ট হয়েছে, যে সেখানে খালি এখানকার পটাকা নাকি বাইরের হাত আছে। বাংলা একটা সীমাবর্তী প্রদেশ, সেন্সিটিভ, তো সেখানে এই ধরনের ঘটনা বারবার হলে দেশের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়। হ্যাঁ, ব্রিটিশ হাই কমিশনার এসেছিলেন আমার বাড়িতে, সংযোগবশত কাল জন্মদিনে ছিল, শুভেচ্ছা দিলেন। আর তিনি মূলত গুজরাটি পরিবারের থেকে এসছেন, ব্রিটিশ নাগরিক, যেমন ঋষি সুনক পাঞ্জাবি পরিবারের। আমি বললাম ভারত এতদিন ধর্ম সংস্কৃতি বিস্তার করত, অন্য জায়গা থেকে আমরা অন্য কিছু আনতাম, ব্যবসা বাণিজ্য। এখন দুনিয়াকে আমরা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সাপ্লাই করছি। ওনাকে আমি আমাদের দেশের সংস্কৃতির চিহ্ন দিলাম, লক্ষ্মী আর গণেশের রূপার মূর্তি দিলাম এবং বললাম, দেখুন আপনাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ঠিক নাই, লক্ষ্মী গণেশকে নিয়ে যান, ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে যাবে। উনি নিয়ে গেছেন। আমি রাম মন্দিরের ক্যালেন্ডার দিলাম, সেটাও নিয়েছেন উনি। খুব ভালোভাবে কথাবার্তা হয়েছে। সীতাভোগ খাইয়েছি বর্ধমানের, ওনারা মিষ্টি কম খান, তবু বলছে আমি একটু খাচ্ছি আজকে, ভালো লেগেছে। শুভেচ্ছা তো জানিয়েছি। তৃণমূলের সুনীল আপনার কবে আসবে? তৃণমূলের সুনীল দা কোথায় আছে সেটাই তো জানি না, তো সেই জন্য কোথায় যাবে, কি করবে, সিনিয়র লোক, আমি আর কি বলবো। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আগের থেকে আছে, এর আগে ওর বাড়ি গেছি, কালকে আবার ডেকেছিল, গেছি। আমার জন্মদিনে কেক কেটে খাওয়ালো, ব্যাস। হ্যাঁ, দেখুন পুরো কুচবিহার একটা উত্তেজনা প্রবণ জায়গা, লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত সবসময় গন্ডগোল। তো সেখানে ওই বম ফম দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে ওখানকার সরল যারা রাজবংশী মানুষরা, যারা আমাদের পক্ষে আছেন, তারা যাতে ভোট না দেয় সেই চেষ্টা হয়। তবু আমি বলছি ওরা ভোট দেবেন, নিশ্চিত জিতবেন। কুচবিহারের দিনটায় ভোট কভারেজের সময় ভোট রেজিডেন্সি অফিসারকে ধরে ভোটে, এবং সেখানে দেখা যায় যে সাংবাদিকদের গাড়ি ভাঙচুর হয়। এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা হচ্ছে, তাতে কিছু যায় আসে না, ভোট ঠিকঠাক হবে। कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र संख्या 4/37 बूथ संख्या 4/37 मतदान केंद्र मध्य फोलीमारी क्षेत्र में जिंदा सड़क पर बिखरे कई जिंदा बम बरामद हुए हैं। घटना की खबर सुन मौके पर पहुंची पुलिस ने बमों को पानी में डालकर निष्क्रिय करने के लिए अपने साथ ले गई। स्थानीय लोगों का आरोप, तृणमूल मतदान होने से पहले रात के अंधेरे में इलाके में करवाई थी बमबाजी, लोगों को मतदान केंद्र पर मतदान नहीं करने के लिए दी थी धमकी। তখন আমি পিছন থেকে ঘুরে যখন তাকাই, তখন দেখি আমার চোখে এসে ঢিল লাগে। কারা ঢিলটা ছুড়লো? তৃণমূলের লোক। আপনি কি কোনো দল করেন? না, আপনি সাধারণ ভোটার? সাধারণ ভোটার। ওইখানে কি কোনো সংঘর্ষ চলছিল সেই সময়? না, আমি তো ওই দিকে দেখি নাই, আমি তখন বাড়িতে আসতেছি। আচ্ছা, পিছন থেকে যখন চিল্লা আল্লাহ শুরু হয়েছে, তখন আমি পিছনের দিকে যখন ঘুরে তাকাই, তখন এসে একটা ঢিল এসে আমার চোখে লাগে। কত নম্বর বুথের ভোটার? আমি 260 নম্বর বুথের ভোটার। তারপর কি হলো? তারপর ওখান থেকে আমি চলে আসলাম বাড়িতে। পুলিশ প্রশাসন আসলো না? না, পুলিশ প্রশাসন আসে নাই। হাসপাতালে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি বাড়িতে এমনি ডাক্তার নিয়ে এসে হইলাম। আপনি কি আতঙ্কিত বর্তমানে? আতঙ্কিত। কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম বিনোদ সরকার। বাড়ি? ছোট শালবাড়ি। গেলকাল রাত্রি 12টার পর পরপর 4খানা বম ব্লাস্ট হয়েছে। আর ভোটের 5 দিন আগের থেকে আমাদের বুথে, টোটাল বুথে হুমকি দেওয়া হচ্ছে সাধারণ ভোটার যেন ভোট দিতে না যায়, ভোট দিয়ে আসলে পরের দিন তাদেরকে খেসারত দিতে হবে।
গেল ইলেকশনেও 4-37-এর বর্তমান যে পঞ্চায়েত ওনার দলবল নিয়ে এসে এই বুথে মাধব বিশ্বাসকে মার্ডার করেছিল এবং গেলকাল রাত্রেও আমাদের বুথে প্রায় বাড়িতে হই হুল্লোড় আর ধমকি দেওয়া হয়েছে যেন ভোট দেওয়া না হয়। সকালবেলা পথচারী যারা রাস্তায় হাঁটা চলাফেরা করে তারা কয়েকটা বম দেখতে পায়। সকালবেলা পুলিশ এসে 9খানা বম উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। কোথার থেকে সেটা হলো ওই খগেন দাওয়ানি, পুরান উনি একজন দাওয়ানি ছিলেন, ওনার বাড়ির মাঝামাঝি পাকা রাস্তার সাইডে ছিল আর বম ব্লাস্ট হওয়া ছিল। এটা কি এই বুথে? এটা কোন জায়গা? এটা হলো 4-37। আর জায়গার নাম কি? জায়গাটা হলো ভোটেরহাট মধ্য পলিমারি স্কুল। আচ্ছা আচ্ছা, কি নাম দাদা আপনার? আমার নাম সুজিত রাজভর, আমি 4-37। पीएम प्रचार मंत्री बनकर कर रहे प्रचार, 150 से 175 सीटों पर सिमट जाएगी एनडीए। शत्रुघ्न सिन्हा पीएम के एनर्जी लेवल को लेकर दिए बयान पर भी दी सफाई। कहा, पीएम ने अपने एनर्जी लेवल का नहीं किया सही इस्तेमाल, हो चुके हैं क्रेडिबिलिटी। आसनसोल टीएमसी सांसद और आसनसोल से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने उस बयान पर सफाई दी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के एनर्जी लेवल की तारीफ किया था। उन्होंने अपने उस बयान को लेकर कहा कि पीएम ने अपने एनर्जी लेवल का सही इस्तेमाल नहीं किया है। आज देश का लोन 4 गुना बढ़ गया है। पीएम ने अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आज पीएम प्रचार मंत्री बने हुए हैं। प्रचार मंत्री चाहे जितना भी प्रचार कर ले, लेकिन एनडीए को 150 से 175 सीटों से ज्यादा इस बार नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। अगर यही दूसरा कोई पार्टी करता तो उससे इस्तीफा मांगा जाता। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी नेता। उस पैसे का कि सेंट्रल हमारे अब स्कीम के सारे फंड जो ये केंद्र ने रोक के रखे हुए, जिसके लिए ममता जी ने बहुत संघर्ष किया, तमाम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। पहले वो फंड हो जिसके लिए हम कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख, हमारा पैसा है, हमारे गरीबों का पैसा, हमारे डेवलपमेंट का पैसा, हमारे विकास का पैसा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का पैसा है, वो आप कैसे रख सकते हो? रोका हुआ है। पहले उस पैसे को हासिल करना, उसके बाद जो हमारे सीएम फंड का हो, पीएम फंड का हो, चाहे जैसा फंड आप बता रहे हैं, जो पैसा आया है या मिलेगा, हम उसका सदुपयोग करेंगे। विशेषकर हम बंगाल की जनता के लिए, ग्रामीण जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम जरूर भरपूर उसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। जो हुआ है जिसके जरिए वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला पे आप लोग जितना रोशनी डालेंगे, मैं समझता हूँ वो देश की जनता के लिए, आवाम के लिए, और आप समझ सकते हैं समाज के लिए और समाज के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा बहुत ज़रूरी है। और इस घोटाले को उजागर करना बहुत ज़रूरी। इतना याद रखिए, यही घोटाला एक्सटॉर्शन रैकेट अगर किसी और सरकार ने किया होता, विपक्ष ने किया होता, आप खुद ही बताइए क्या हालत होती। उसके इस्तीफा मांगा जाता, उसको इस्तीफा दो, ये करो, वो करो, कानूनी कार्रवाई करो। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? जबकि संविधान का कोई इतना बड़ा उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो लोग इसका पहले जवाब नहीं दे रहे हैं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन खासकर मीडिया का इस पे फोकस होना चाहिए, इस पे दबाव होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। थैंक यू। কখনো এরকম রেসপন্স আমি দেখিনি। সবাই ছিলেন আমার সঙ্গে, ইনিও ছিলেন, ভোলেবাবু ছিলেন, হরেরামজি ছিলেন, আমার নরেনবাবু ছিলেন, বিধান ছিল, কালকেও অনেকবার করেছি। আর যা দেখেছি রেসপন্স, সেই রেসপন্সের বেস করে আমি বলছি কি এইবার যা হবে 400 পার হবে না, 2004-এর রেজাল্ট হবে। থ্যাংক ইউ। একটু আগে এসে বলুন তো কি বলছেন আপনি? আমি সবকে তো বললাম না, আমি বন্ধুরা বললাম, আমার বন্ধুরা আছেন, অনেক বন্ধুরা আছেন। আমি মিডিয়াতে ভেরি ফেমাস, এত বন্ধুরা আছে। ও মোদিতেও আছে, কিন্তু সবাইকে আমি বলি অনেক কাজ আছে। এইবার তো প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেছে, কোল
সেইটাও করতে চাই আমরা, কিন্তু এখন বেশি বলতে পারবো না। আমি ইলেকশন হয়নি তো, ইলেকশনের সময়, ইলেকশনের আগে আমি বেশি কিছু কমিট করতে চাই না, কিন্তু হ্যাঁ ওই তো রোকনে কে বল। আপনার সংসদ এলাকায় সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে পুনর্বাসন এবং ধসের সমস্যা এবং পুনর্বাসন আছে তো। হ্যাঁ, সেই পুনর্বাসনটা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিকমতো টাকা দিচ্ছে না, কয়লা মন্ত্রক টাকা দিচ্ছে না, ফলে পুনর্বাসনটা ঠিকমতো হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আপনি আগামী সাংসদ হয়ে আরে কি দেবো আমি এখন, আপনি চান কি আমি এই সময় ডিক্লেয়ার করি? আমি সব মনে আছে। এখানে রেলওয়ে মোর দেন অলমোস্ট 60% ল্যান্ড তো রেলওয়েকে বিলং করে এখানে, সেইটাও মনে আছে। ওরা অনেকজন আমাকে কমপ্লেন করেছে কি হচ্ছে, हमारा काम नहीं हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जमीन पानी नहीं मिल रहा है, सर स्वेज का सिस्टम ब्लॉकेज हो रहा है, फलाना हो रहा है, सब আছে। কিন্তু এইসব তো আমরা প্রায়োরিটি ওয়াইজ করবো, তো এরপরেই করতে পারি আমরা। না ঠিকই বলছেন, আমি চিনি, আমার সঙ্গে ছিলেন, পার্লামেন্টে ছিলেন, কিন্তু নো পার্সোনাল ফাইট। আর আপনি তো আমার ক্যারেক্টারটা দেখেছেন, আমি কখনো কারো नाम আমি नहीं, कारो नाम अपोजिशन का लीडर जो है या ओपोनेंट जो है आपका दुश्मन नहीं मानता हूं मैं उसको, वो विरोधी है। हम लोग के विचारों की लड़ाई होती है, हमने उसूलों की लड़ाई होती है, लेकिन हाँ असूलों पे आँच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। सर 2 दिन पहले भाई प्रचार प्रसार कर ले, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनते हुए चलते रहें, लेकिन जो प्रचार करते हैं प्रचार मंत्री कितना भी कर लें, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को या जो एनडीए कह रहे हैं सब मिलाकर 150 से 250 सीटों को भी पार नहीं कर पाएंगे। 150 से 250 सीटें। बाकी तमाम कुछ सारी बातें हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं जो गोदी मीडिया में हैं, कुछ हमारे फ्रेंड जो हैं वो मोदी मीडिया में हैं। गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो कहता रहे, लेकिन हमारी वाणी यही है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही है, हमारा अनुभव यही है। और ऊपर से जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि ममता जी के ऊपर ऐसा प्रहार, अब पिछली बार लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इस बार लोग देख रहे हैं कि सारी बातों के साथ आप अभी जो घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को दबा रहे हैं आप, नई नई गारंटी मोदी की गारंटी बनाकर ला रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के उन पे आप बात नहीं करके एक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं अपमान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, या उनके ऊपर प्रहार करते हुए बगैर इश्यूज के आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी का व्यक्तित्व का जादू जो चल रहा है हम सबके साथ पूरे देश में, समाज में, वो रंग लाएगा। और इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा, न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा न अब की बार होगा। और इसी दौरान इसी प्रक्रिया में मैं माध्यम बनकर, मैं उम्मीदवार बनकर, मैं इन तमाम अपने साथियों का, कलीग्स का, नेताओं का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर और ममता जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व के अंदर मैं सामने आया हूँ, यही कहने और यही करने। क्योंकि हम लोग जो हैं इस बात के लिए मशहूर हैं, या शायद कुछ लोगों में थोड़ा बहुत बदनाम है, कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। हमने पहले भी करके दिखा दिया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव में स्वीप करेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी मुंहतोड़ इनको हार का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा था कि 400 पार का नारा जो लोग दे रहे हैं उनको शायद इस बार 2004 के नतीजे याद आ जाएंगे। नया चेहरा, नई लीडरशिप, नई बातें, समाज नई दिशा में, लेकिन सही दिशा में
2004 के नतीजे लेकर आएगा, जैसे कि मनमोहन सिंह जी आए थे और जैसे नई बातें हुई थी उस वक्त। इस बार भी उसी की पूरी संभावना ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। अगर आप लोग इसमें फिलहाल उनके तरह एनर्जी लेवल और किसी नेता के अंदर नहीं। देखिए, मैं इस बात को, पहली बात तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। चुनाव की घड़ी में ऐसी बातें कई बार शायद लोग थोड़ा जानबूझकर बाहर लाते हैं कि चुनाव की घड़ी है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो, थोड़ा इस तरह की बातें हो। मैं पूरे दमखम के साथ कहता हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा हूं। मैं तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूं या फिर तृणमूल कांग्रेस का सिपाह सालार हूं। मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, ममता बनर्जी और उनकी टीम के साथ ही रहूंगा मैं। और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपने ममता बनर्जी जी को या अपनी पार्टी को या अपने तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह की कोई बात करके ठेस पहुंचाऊं। और दूसरी बात, आपने कहा किसी के एनर्जी लेवल की अगर हमने तारीफ की, अगर आपको दिखता है तो साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी एनर्जी का सही रास्ते में इस्तेमाल नहीं किया है। तो उस एनर्जी का इस्तेमाल किया है। आज देश 4 गुना से भी ज़्यादा कर्जदार हो गया है। आज भारतवर्ष पे जो कर्जा है, तमाम प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना कर्जा नहीं लिया था या देश के लिए, उससे 4 गुना से ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं। आज इनकी एनर्जी है तो सारी एनर्जी जा रही है अपने झूठ या अपने जुमलों को संभालने में, जुमलों को बचाने में। गारंटी मोदी की दे रहे हैं, पहली सारी गारंटी को भुला देने में, या लोगों से कह के कि नहीं वो भूल जाइए, वो जुमला है, अब हम नई गारंटी लेके आए। अपनी विश्वसनीयता माननीय प्रधानमंत्री जी खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए सारी एनर्जी का सदुपयोग या दुरुपयोग वो कर रहे हैं अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपने गलत जुमलों को, अपने गलत वायदों को छुपाने में, बचाने में और खुद को संभालने में।